अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुख्तार अहमद वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के साथ। और आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो हाउ आर द फर्स्ट 2 लेक्चर्स? डिड यू फाइंड एनी गुड बुक फ्रॉम द मार्केट? जैसे मैंने आपसे कहा था कि एनी बुक विल बी फाइन। ऑफ कोर्स आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन बुक, वहां से रेफरेंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन द प्रिंसिपल्स आर ऑलमोस्ट सेम। एवरीबॉडी इज टॉकिंग द सेम थिंग, ऑफ कोर्स यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स। और टाइटल का भी परेशान ना होइए। इट कैन बी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, इट कैन बी बेसिक मार्केटिंग, it can be simple marketing. But remember, this course is the basic course of marketing. तो उसी को हमने शुरू किया है। So what about the previous 2 lectures? Did you get the basic idea, basic concept of what is this marketing and why it is important? क्या था marketing, क्या चीज है? Simplest word में, you are trying to satisfy basically need or wants of the customer with profit. You are not going to do it free. और वो याद है बेसिक सिंपल मॉडल जो हमने डिस्कस किया था कि you are the producer, you have the consumer, and both they are trying to satisfy each other needs. And what were those needs? प्रोड्यूसर ने कम्युनिकेट किया और प्रोडक्ट और सर्विस आपको दिया, एंड एज ए कंज्यूमर you are giving him or her the money if it is monetary exchange, and of course the feedback, informations, so that he might be able to improve the product or services. So I believe we are doing fine so far. So far, so good. So let's start our today's lecture, and that is our lecture number 3. Okay, so should we start now? But you remember that we have to do certain things, and they will be, first we have to review the previous lecture, and that was lecture number 2. So let's summarize quickly. I review the previous lecture. That was lecture number 2. If you recall, we tried to discuss the roadmap about this subject, about this course, that what topics tentatively we will be covering during these 45 lectures. कोई याद है? चलें, फॉरगेट, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। एंड आफ्टर दैट वी अगेन स्टार्टेड द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग है क्या? व्हाट इज द रोल ऑफ कस्टमर देयर? कॉटलर की डेफिनेशन भी याद होगी आपको, हमने देखी थी। एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन need, wants, demand, product and so on. उसको क्या कहते हैं? Come on. I know first couple of lecture will be little bit sometime boring, sometime difficult, but as you move, as you study, as you work hard, you will find them interesting, and you will see these are practical life examples, and every day we are watching it, exposing to them, or facing all these type of things. वो क्या था? Yes, core marketing concepts या core concepts of marketing. उसमें मैंने आपके साथ एक मॉडल को शेयर किया था, एक पूरा कंप्लीट मॉडल बना हुआ था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का। The same model can be reproduced like this. वही चीजें है ना, थोड़ा सा उसको
एक और टेक्स्ट में जिस तरह दिया हुआ था, एक और किताब के अंदर जैसे दिया था, उसको मैंने रिप्रोड्यूस किया है, सो दैट इफ यू आर फॉलोइंग दिस टेक्स्ट स्टिल यू विल बी फीलिंग कंफर्टेबल. सो दिस द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट स्टार्ट विद द नीड. और जैसे मैंने आपसे कहा था, फिजिकल नीड भी हो सकती है, बेसिक नीड भी हो सकती है, और सिमिलरली अगर नीड्स को थोड़ा सा और डेप्थ पे जाएं तो देयर आर प्राइमरी नीड्स, देयर आर सेकेंडरी नीड्स. और व्हाट इज नीड बेस्ड, बाय द वे, व्हेन यू आर डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, वो नीड वांट कैसे बनती है? कल्चर से. किस एनवायरमेंट में आप रहते हैं? As I said earlier, for the same need, people might have different wants. Their culture, their values, they can shape up those needs into wants. अब wants और डिमांड में क्या फर्क था? शाबाश. Yes, when those wants are backed up by the buying power, they will become the demands. और वही डिमांड्स प्रोडक्ट की शक्ल, सर्विस की शक्ल इख्तियार करते हैं. सो व्हाट इज बाय द वे प्रोडक्ट और सर्विस? एनीथिंग tangible, intangible, because if it is service, it might be intangible, which will satisfy your need or want for that purpose, or demand for that purpose. We'll call them, I will call it a product or service. फिर उसकी values, उसकी worth, of course, that is also a subjective thing. इसकी exchange होती है. Or you know, there were certain prerequisites for the exchange to take place. Exchange होने के लिए कुछ basic requirements थी. वो क्या थी? At least there are two parties involved. Yes, that is fair enough. Each one have something valuable to offer to each other. Each are willing to exchange. Each are free to accept it or reject it, the offer. And finally, both should communicate. तो फिर हम कहते हैं कि yes, this is a normal exchange. After exchange, transactions. What was the form of exchange? कितनी बताई थी आपको? Yes, two basic forms of transactions, either monetary or barter exchange. Barter exchange किसको कहते हैं? जिसमें at least one party, जहां पे there is no money involved, rather, I can say. That is a barter exchange when you are exchanging goods with the goods, good with the services, or service with the services. और जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, when at least one party is exchanging in form of money, currency, or whatever, we'll call it monetary exchange. And then the last step was the market. And what is a market? For common person, for a layman, market is a place where all these activities take place. But for you, for me, for marketing students, for business students, the market is a set of potential customers. The set of buyers. Of course, that place where all those activities, we call it market, is also market. But see how this, when you're deprived of something, that has triggered a complete set of activities.
And if marketers know those things, basic things, they are smart enough. And definitely, if they follow the basic principles, they should be successful. What about today? What are we going to talk today? कौन से टॉपिक पढ़ने थे? I believe you have taken time to go through those new topics which we are going to cover today. And they are the functions of marketing, the marketing functions, और उसके अलावा CRM इसे कहते हैं, Customer Relationship Management. The Customer Relationship Management is a bit advanced topic, but since certain books they are discussing it, and certain authors they are discussing in their books in beginning, so I thought better we should discuss it with you so that you should not be confused somewhere. ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए आज मैं ये टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा. डोंट वरी अबाउट इफ आई एम टॉकिंग सम डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी हियर, या थोड़ी सी एडवांस लेवल की बातें करूं तो उससे आपको वरी नहीं करना. आई विल ट्राई टू मेक इट मोर सिंपल, राइट? तो लेट्स सी. ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी डिफरेंट फंक्शंस, मार्केटिंग फंक्शंस. तो कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो मार्केटिंग में हो रही होती हैं, तो उनको आपके साथ शेयर करूंगा और फिर हम आगे चलेंगे CRM और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. कॉस्ट एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. लफ्जों में कभी अपने आप को कंफ्यूज ना कीजिए. ट्राई टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. The same thing a different author can tell you in a different way, and another author will be telling you something different. But if you go in depth, you will realize that both are talking the same thing. So let's see, what was the cost? You remember that? In lecture number 1 when we discussed why should we study marketing? तो मार्केटिंग पे कितनी कॉस्ट आती है टोटल प्रोडक्ट के, कितने परसेंटेज? 50% on average. On the average, 50% all product costs can be traced directly to marketing activities. Agree? देखा गया है, रिसर्च की फाइंडिंग ये है, लोग कोट करते हैं कि अराउंड 50% ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट, कोई भी प्रोडक्ट जब उसकी प्राइस डिटरमिन करते हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव टू सी व्हाट वाज द कॉस्ट, टोटल खर्चा कितना इस पे आया, एंड 50% ऑफ दैट कॉस्ट इज मार्केटिंग कॉस्ट. उसमें रिसर्च पे खर्चा हुआ, डेवलपमेंट में उसके जो खर्चा आ रहा है, उसकी जो पब्लिसिटी पे खर्चा आ रहा है, उसकी जो आपकी सेल फोर्स जो एक्टिविटी कर रही है, ऑल दोज एक्टिविटीज, उसकी जो होल्डिंग कॉस्ट है, सो ऑन. Isn't it a huge amount? What does customer receive in exchange of that 50% marketing cost? Why should I pay you extra 50%? क्योंकि उसकी मुझे क्या फायदा है? आप मार्केटिंग अच्छी करें, बुरी करें? No, not really. The customer satisfaction, उस प्रोडक्ट को जो मार्केट में आप लेके आते हैं उसको इन्फॉर्म करते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बोथ थिंग्स. तो मार्केटिंग पे याद रखिए, ह्यूज प्रोपोर्शनेट ऑफ योर कॉस्ट इज बीइंग स्पेंडेड ऑन मार्केटिंग एक्टिविटीज. When we are talking about marketing functions, there's a list of around 7 to 8 different activities. Of course, other than the other thing which we talk about, 4 Ps and other research and activities, these are the common extended functions in marketing. Start with buying, selling, transporting, storing, standardization और जिसे ग्रेडिंग कहते हैं आप, financing, risk taking, information seeking. Are they important? Yes. We call them 8 universal marketing functions.
हो सकता है कि आपकी टेक्स्ट बुक में इसका जिक्र ना हो, लेकिन कुछ टेक्स्ट बुक में मैंने ये देखा था, ये चीजें, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूं ये क्या चीज है. लेट्स गो वन बाय वन. बाइंग. यू आर बाइंग समथिंग, आई एम बाइंग समथिंग. जो मार्केट के जो बिजनेस कर रहे हैं, जो मार्केटिंग के लोग हैं, दे आर ऑल्सो बाइंग समथिंग. What do they buy? Of course, the raw material, the services. और जरूरी नहीं होता कि आप खुद ही प्रोड्यूस करें समथिंग. We call it trade theory, where we have to decide either we want to go for buying or producing. You can directly produce, you can directly buy from the market from some other vendors and resell it, make some adjustment and then resell it either. Or you can develop or produce the product yourself. It depends. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है. Then is selling. Yes. The difficult part. I might have produced something, but if it is, I don't have any market for that particular product service, how I am going to sell it? Who's going to use it? Who's going to buy it? So that is also one function. Transporting, yes. Making sure, वो जो बेसिक मार्केटिंग जो हम पढ़े थे, right product at the right time and at the right place. आपको किसी चीज की आज जरूरत है, वो अगर परसों पहुंचे तो व्हाट विल बी द वर्थ फॉर दैट. तो मार्केटर को ये मेक श्योर करना होता है कि राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे वो चीज मौजूद होनी चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट करना है. एंड सम टाइम दिस ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कैन प्ले वेरी वाइटल रोल. लोग अपने वेयर हाउसेस पर्टिकुलरली खास जगह पे बनाते हैं, क्योंकि आगे होल्डिंग कास्ट भी आ रही है, स्टोरिंग कास्ट जिसको हम कहेंगे, और उसी के बेस पे दिस इज आल्सो वन फंक्शन विच मार्केटर हैज टू परफॉर्म ड्यूरिंग देयर मार्केटिंग प्रोसेस, एंड दैट विल एड अप द कास्ट और रिड्यूस द कास्ट टू. और फिर आगे फोर्थ फंक्शन कैन बी स्टोरिंग, जिसे मैंने कहा था होल्डिंग कास्ट. And this is also very important. आप देखते हैं कि जब सीजन खत्म हो रहा होता है, मुख्तलिफ वेंडर्स, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, दे गो फॉर द सेल्स ऑफ दैट स्टफ विच वर फॉर दैट पर्टिकुलर सीजन. बड़ी नीचे प्राइस ले आते हैं. वाई? उसके बहुत से रीजन और भी हो सकते हैं कि वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, खराब हो सकता है, एंड सो ऑन. बट वन कंसिडरेशन इज ऑल्सो द होल्डिंग कास्ट, द स्टोरिंग कास्ट. अगर आप उसको 6 माह के लिए, 3 माह के लिए कहीं डंप करते हैं, स्टोर करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू एड अप द कास्ट. स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ये भी एक एक्टिविटी है, एक फंक्शन है जो मार्केटिंग के लोग करते हैं, स्पेशली इन द कमोडिटीज. और खाने पीने की चीजों में भी आप स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, हर चीज में होती है टेक्निकली. बट द ग्रेडिंग इज यू स्प्लिट थिंग्स. ग्रेड ए, बी, सी अच्छी चीज है, थोड़ी सी इसमें खराबी है, थोड़ी सी इसमें साइज छोटा है, वट एवर, एंड दैट इज ऑल्सो वन फंक्शन. फाइनेंसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन द फंक्शन. द कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने अकाउंट्स के, फाइनेंस के कोर्स कभी पढ़े हो. पैसों के अरेंज कहां से करेंगे? अरेंज एट द राइट टाइम पे, जिस वक्त आपको जरूरत है. सो दैट इज ए मेजर फंक्शन टू रिमेंबर दैट. कई दफा एक अच्छा काम कर रहे होते हैं आप, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, बट ड्यू टू दिस फाइनेंस प्रॉब्लम everything is gone. So this is also one function. Risk taking.
in all sort of activities, in your real life too. People do take the risk, but we should take the calculated risk. The more you will take the risk, the return will be more. इसका ये मतलब नहीं है कि बस छलांग लगा देनी चाहिए. No. I'm talking about the calculated risk. Risk taker आजकल की डायनामिक एनवायरनमेंट में अंदर, that is also very important characteristics. You have to take certain risks. तो ये भी एक फंक्शन हुआ. Securing मार्केटिंग इंफॉर्मेशंस. जैसे मैंने याद होगा आपसे कहा था, कीप योर आइज एंड ईयर ओपन, यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. मार्केटिंग के लोगों को तो बहुत एक्टिव होना चाहिए. दे शुड क्विकली ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज. इंफॉर्मेशन लेने से क्या फायदा? इंफॉर्मेशन किस लिए चाहिए? फॉर डिसीजन मेकिंग. तो फर्स्ट टाइम हिट वाला कॉन्सेप्ट जहन में रखें कि हॉकी कभी खेलते हुए देखिए कि जिसके पास बॉल है, जो पहले हिट ले गया वो आगे ले गया बॉल को. सिमिलरली इन दिस कंपेटिटिव वर्ल्ड, द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक द इनिशिएटिव, द फर्स्ट हिटर जिसे कहते हैं, वो हमेशा काम एज ले जाता है मार्केट के अंदर. तो उसके लिए जरूरी है कि you should also always have proper, up-to-date, recent and quick informations, so that you should make the better decisions. The more the information you have, it will help you to make better decisions. So, these are the 8 functions. Commonly, people say they are the मार्केटिंग फंक्शंस. इसका ये मतलब नहीं बाकी फंक्शन, बाकी बेहिसाब फंक्शन और भी हैं, लेकिन क्योंकि सर्टेन टेक्स्ट के अंदर, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मैंने इसको देखा, तो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू. मार्केटिंग मैनेजमेंट, दिस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद देम. क्योंकि मैंने वो जो आपकी टेक्स्ट बुक्स है उसको थोड़ा सा फॉलो करना शुरू किया है, तो जो टर्मिनोलॉजी आती जाएगी, जो लफ्ज आते जाएंगे, मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, क्योंकि यू आर टेकिंग इट एज अ फर्स्ट टाइम. सो दैट इज आल्सो माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चीजें जो आपके सामने से गुजरे तो कम से कम आपको आइडिया हो कि यह क्या चीज है. कुछ टर्मिनोलॉजी कुछ साइड पे आपको देखेंगे आपके लफ्ज लिखे होते हैं, तो उनको भी साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं. क्रिएटिंग, delivering and communicating superior customer value is the key. Yes, agree. We're talking from the first lecture. The key is the customer satisfaction. यही एक जगह एक टर्म यूज होती है, डीमार्केटिंग. व्हाट इज डीमार्केटिंग? एक है मार्केटिंग, ऑफ कोर्स, जहां पे आप क्रिएट करते हैं, एक एक्सचेंज होती है, यू आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ईच अदर, और आप पुश करते हो, आप फैसिलिटेट करते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग वो चीज को, उस प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करें. बट सम टाइम इट इज अदर वे अराउंड. डीमार्केटिंग की डेफिनेशन क्या थी? कार्टर की बुक में भी है और एक दो जगह मैंने देखी है. मार्केटिंग टू रिड्यूस द डिमांड टेम्पररीली or permanently. The aim is not to destroy the demand but only to reduce or shift it. क्या मतलब हुआ इससे? कोई ऐसा बिजनेस या ऐसा पर्सन होगा जो अपनी चीज को चाहेगा कि वो इसको कोई ना खरीदे या कोई अगले लोग उससे कम इस्तेमाल करें. यस, इट हैपन. कोई है एग्जांपल आपके ध्यान में? अपने यहां पाकिस्तान में देख लें, सर्दियों में जब पानी कम होता है दरियाओं में, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कम होती है ना, ऐसी बात. और वापका भी टीवी पे एड देता है,
अखबारों में बड़े बड़े एड्स आते हैं उनके कि मेहरबानी करके बिजली का इस्तेमाल कम रखें, फालतू बत्तियों को बुझा दें। व्हाई डू दे से दिस टाइप ऑफ थिंग्स? ये तो इनका बिजनेस है ना, उनको तो चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बिजली इस्तेमाल हो। नो, बिकॉज दे आर मैनेजिंग देयर डिमांड एंड सप्लाई थिंग। सिमिलरली गैस के स्विच गैस वगैरह जो है हमारी, उस वक्त प्रेशर होता है, इंडस्ट्री के भी लोग यूज कर रहे होते हैं, सर्दी में हर घर में हीटर भी चल रहे होते हैं। देयर आल्सो सम टाइम पब्लिसाइजिंग कि गैस का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें ताकि आपकी इंडस्ट्री भी साथ साथ चलती रहे। सप्लाई इज लेस। तो सी, दे आर डिस्करेजिंग यू ऑफ यूजिंग देयर प्रोडक्ट टेम्परेरीली, है ना। और सम टाइम इट कैन बी परमानेंट, कि आप एक प्रोडक्ट की जगह रिप्लेस में एक नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके कस्टमर शिफ्ट हो जाए उस नए प्रोडक्ट पे, और जो पुराना प्रोडक्ट है उसको आस्ता आस्ता खत्म कर दें। सो दिस कंसेप्ट इज डीमार्केटिंग। क्लियर? कि आप चाहते हैं, यू डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय द मार्केट डिमांड, रादर यू वांट टू रिड्यूस इट फॉर टाइम बीइंग, और यू वांट टू शिफ्ट इट। जैसे मैंने आपको वापटा की बिजली की मिसाल दी, आपको गैस की मिसाल दी, इसको हम डीमार्केटिंग कहेंगे। Then another concept was the relationship market. What is relationship market? The process of establishing and maintaining mutually beneficial exchange relationship with customer and other stakeholders. It's not simply selling something. It is the long-term commitment, the relationship. ये लफ्ज स्टेक होल्डर और स्टॉक होल्डर मैं एक दो दफा यूज कर चुका हूं। व्हाट इज स्टेक होल्डर एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड स्टॉक होल्डर? हैव एनी आइडिया? स्टेक होल्डर इज एनी पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन विच हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप और वर्किंग थिंग्स विद यू एज ए मार्केटर और एज ए बिजनेस पर्सन। उसमें आपके एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, उसमें आपके सप्लायर भी हो सकते हैं, उसमें आपके कस्टमर भी हो सकते हैं। दे आर योर स्टेक होल्डर्स, जिनका कुछ ना कुछ स्टेक है, आपके साथ इंटरेस्ट है। बट व्हाट अबाउट स्टॉक होल्डर्स? स्टॉक होल्डर्स आर दोज पार्टी, दोज पीपल, दोज ग्रुप विच हैव डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस। शेयर लिए होते हैं लोगों ने, इन्वेस्टमेंट की होती है, सो दे आर योर स्टॉक होल्डर। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक होल्डर एंड स्टेक होल्डर। Two components for relationship marketing: customer focus and competitive advantage. एक नया लफ्ज आपने सीखा, competitive advantage. Customer focus तो एग्री, but why should customer come to you again? Unless you are having something extra, you are providing something different. कंपेटिटिव एडवांटेज, दूसरों के मुकाबले में आपके पास क्यों वो लेने आए? क्या एडवांटेज है आपके पास? क्या एक्स्ट्रा चीज है आपके पास? रिमेंबर आई सेड कि अनलेस यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई योर कस्टमर बेटर देन योर कंपेटिटर, यू आर नॉट गोइंग टू स्टे इन द मार्केट। तो वो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज देता है, आपकी यूनिकनेस है, कोई प्राइस में अच्छा है, कोई क्वालिटी में अच्छा है, कोई डिजाइन में चीज अच्छी है, आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, तो that is giving you a competitive edge. Edge or not? What? As your competitors, right? जो मार्केट में लोग बैठे हुए हैं। और तो ये दो चीजें रिलेशनशिप मार्केटिंग के लिए जरूरी हैं कि यू शुड बी कस्टमर सेंटर्ड, कस्टमर फोकस होना चाहिए आपका, एंड कंपेटिटिव एडवांटेज आपके पास कोई होनी चाहिए, आपके पास एज होनी चाहिए, सस्टेनेबल, एडिशनल बेनिफिट, वट एवर। लेट्स मूव। द थिंग्स आर चेंज नाउ, एंड व्हाट इज द चेंज? एंड रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, एंड आवर सब्जेक्ट इज मार्केटिंग, बेसिक मार्केटिंग, द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, द फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। पहले मार्केटिंग का कुछ और फिलॉसफी थी, अब कुछ और है।
नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह ये चेंज आई है इसमें। यस्टरडे जो गुजर गया, क्या होता था? Here is this great product, don't you want to buy it? The marketer used to say कि ये चीज मेरे पास है, बड़ी अच्छी है, आप लेना नहीं चाहोगे इसको? अब हिस्ट्री पढ़ते हैं, देखते हैं कि लोग चलते इंडिया से इराक में चीजें बेच के आते थे, इराक से चलते थे इंडिया में चीज लेके आते थे। That is how business was taking place, and that's how marketing was taking place. But now it is different. What is different? Today, the boss is different. उस वक्त ताजर थे, आपकी किस्मत है कि ताजर आपके लिए खास चीज लेके आ गया, आपने ले ली। या ताजर पे डिपेंड कर रहा था क्या चीज लाए, क्या सेल करे। बट नाउ इट इज अदर वे अराउंड। टुडे हियर इज व्हाट आई नीड, कैन यू मेक इट? यहां पे आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट आपसे मांगता है कि ये चीज है, मुझे चाहिए, क्या आप बना सकते हो? एंड इफ यू कैन डू इट बेटर देन योर कंपेटिटर इज डूइंग, यू आर सक्सेसफुल। इजंट इट लाइक दैट? ये है की टू सक्सेस इन द मार्केटिंग, कि यू शुड बी क्विक टू रिस्पॉन्ड to his need, unsatisfied need, and you are the successful. इसी तरह आजकल तो वो कस्टमर रिलेशनशिप के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग शुरू हो गई। उसमें क्या है? फेस टू फेस चैनल्स, डायरेक्ट मेल, कैटलॉग्स, टेली मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने ये जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे ये आपके सामने कुछ चीजें आती जाएंगी। डोंट बी कंफ्यूज, इसको हम डिस्कस करेंगे दोबारा। सिर्फ बताने का मकसद है कि वही दिस इज अ रिलेशनशिप। नाउ मार्केटर्स आर मोर एंड मोर नैरो डाउनिंग देयर कस्टमर्स, देयर क्लाइंट्स, देयर सेगमेंट। इंडिविजुअल नीड्स को देख रहे हैं। ये जो आगे आप आज टॉपिक पढ़ेंगे हम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट इज द सेम थिंग कि नाउ यू फॉलो इट। पहले तो ये होता था आपने कुछ चीज ली, फॉरगेट, पैसे ले लिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। बट नाउ दे कीप द ट्रैक, दे फॉलो यू, दे हैव ऑल द डेटा विद देम कि इस पर्टिकुलर जो मेरा कस्टमर है इसकी क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, कौन सी चीज ज्यादा इस्तेमाल करता है, कौन सी कब करता है। दे नो बेटर देन इवन योर पेरेंट्स नो। सो दैट इज हाउ दे विल कीप ट्रैक एंड डू दी relationship marketing. We also call it customer focused marketing. Basic philosophy is that it is more profitable to keep loyal customers than to constantly be attracting new ones. मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में दौरान कहीं आपसे डिस्कस किया था कि रिटेनिंग द कस्टमर इज मोर इंपॉर्टेंट। Why it is more important? क्योंकि नया कस्टमर लेने में, स्पेशली टुडे इन दिस एरा, इन दिस सिचुएशन where you have very strong competition, so much options are there, तो नए को अट्रैक्ट करना, फिर उसको लॉयल कस्टमर बनाने में टाइम भी लगता है, रिसोर्सेज भी जाते हैं ज्यादा। लेकिन अगर आपका अपना कस्टमर जो है उसको रिटेन किया आपने, एंड इफ ही और शी इज हैप्पी कस्टमर, तो उसके आपको टेंजेबल और इंटेंजेबल बेसिस ऑफ फायदे हैं। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन आर फोकसिंग मोर ऑन देयर कस्टमर्स already which are availing their product or service or their facilities. Right? इसी दौरान एक कॉन्सेप्ट, इसी में जब वो आप पढ़ रहे होंगे या पढ़ा होगा चैप्टर 2 में या किसी जगह चैप्टर 3 में होगा, कस्टमर या जो आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग है, उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर्स। What is that? The revenues and intangible benefits. Let's see. आप
65 साल जिंदा रहते हैं, अल्लाह ताला और लंबी उम्र करे, 70 साल जिंदा रहते हैं, 100 साल रहते हैं. बट लुकिंग एट द एवरेज लाइफ ऑफ द पीपल, organizations, companies, they do calculate how much benefit is attached with this particular customer with us. अब वो बेनिफिट क्या हो सकता है? एक तो टेंजिबल है, ऑफकोर्स, कि आपके वो प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज कर रहा है. बट देयर आर अदर थिंग्स विच आर इवन मोर इंपॉर्टेंट. दे आर द इनटेंजिबल बेनिफिट्स. वो इनटेंजिबल क्या होता है? कि आपसे कोई दोस्त पूछता है कि यार मैंने कंप्यूटर लेना है, आप कहते हो यार फलां जगह से लो, बड़ा अच्छा है. आप कहते हो, कोई दोस्त आपसे पूछे मैंने गाड़ी लेनी है, यार वो फलां गाड़ी ले लो, बड़ी अच्छी, कंफर्टेबल है, बड़ी इकोनॉमिकल है, बड़ी अच्छी उसकी ड्राइव भी है. योर फ्रेंड आस्क यू, यार मैंने ड्रेस लेना था, तो आप बताते हो कि फलां दुकान पे बड़ा अच्छा ड्रेस आए हुए हैं, शर्ट्स अच्छी आई हुई हैं, ट्राउजर अच्छे आए हुए हैं. एंड दिस इज द रेफरल. यू गिव पीपल, टेक योर रेफरेंस एंड गो देयर एंड बाय इट. सो व्हाट इज हैपनिंग? यू आर डूइंग marketing for your that organization and you don't know that you are helping them basically. तो जो मार्केटिंग के लोग हैं वो इस पे भी बैंक कर रहे थे, काउंट कर रहे थे हैवीली. तो इस दिस वे यू आर गिविंग देम द इंटेंजिबल बेनिफिट्स. कस्टमर फीडबैक. लेट्स सी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद समथिंग. You are staying in a hotel and you find certain things which are not good. अब उनको तो जब तक मालूम नहीं होगा तो उसको कैसे ठीक करेंगे? आई एम यूजिंग दिस लैपटॉप, अनलेस आई एम फेसिंग एनी प्रॉब्लम टेक्निकली, और जो उसकी यूजर फ्रेंडली चीज होती है, तो मैं कंपनी को अगर फीडबैक दे दूं कि यार इसमें ये मसला आ रहा है, अगर आप इसको ये ठीक कर लो, तो सी इन ए वे आई एम हेल्पिंग दैट कंपनी कि उनकी प्रोडक्ट और इंप्रूव हो जाएगा और मार्केट में उसकी और अच्छी वैल्यू बनेगी. So these are the intangible benefit which companies are counting from their customer, from their client. Reference, feedback and other things जो indirect आपको उनको benefit दे रहे होते हैं. So what is this lifetime value of a customer? ये वो worth है जो वो कंपनी को tangible चीजों में अपनी वो प्रोडक्ट सर्विस यूज करके और intangible थ्रू रेफरेंस के जरिए, थ्रू फीडबैक के जरिए कंपनी को ओवर दी रिमेनिंग लाइफ पीरियड ऑफ हिज और हर, वो जो साल उसकी जिंदगी के एवरेज लाइफ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं. एंड कंपनी डू कैलकुलेट दीज टाइप ऑफ थिंग्स. दैट इसमें जो अभी आपको डेफिनेशन में आपसे डिस्कस करा था, द रेवेन्यूज एंड इंटेंजिबल बेनिफिट्स दैट ए कस्टमर ब्रिंग्स टू द सेलर over an average lifetime in the categories less than the amount of company must spend to acquire, market to and services the customer. उसकी वैल्यू उसके लिए क्या रहेगी? अब कंपनी में तो पैसा खर्च कर रही है ना, पब्लिसिटी पे, एडवर्टाइजमेंट पे, आपको फोन करके, आपसे फीडबैक लेके, आपको कॉल करके पूछ के कि सर आप सेटिस्फाई हैं अपने प्रोडक्ट से या नॉट. तो वो बेनिफिट जो कंपनी आपके जिंदगी के वो 60 साल, 50 साल, 40 साल जितने रहते हैं, उस पर आपको वो कैलकुलेट करके देखे और माइनस कर दे जो वो खर्चा करेगी, तो वो जो वर्थ है दैट इज द वर्थ और द वैल्यू ऑफ लाइफ वैल्यू ऑफ दैट कस्टमर. एंड कंपनी डू काउंट ऑन देम. एंड रिमेंबर, हैप्पी कस्टमर का तो फायदा होता ही होता है, लेकिन नाराज कस्टमर का बहुत ज्यादा नुकसान, उससे ज्यादा नुकसान होता है कंपनी को. इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द कंपनी, यू माइट टॉक विद 10 पीपल, बट इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट प्रोडक्ट, विद दैट सर्विस, विद दैट कंपनी, यू आर गोइंग टू टॉक विद 100 पीपल्स. गलत बात तो ऐसे जाती है ना. सो कंपनीज आर नाउ वेरी केयरफुल, क्योंकि जैसे जैसे नैरो डाउन होता जा रहा है चीजें, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, organizations, company, the business people, they are focusing more and more to the customers, and they are keeping the track of even small things. And we also, as I said, call it customer focused marketing. How do I go about increasing the average lifetime value of my customers? By identifying your most valuable customers,
building a learning relationship with them so that you should provide a sustainable advantage over your competitors, so that you should also increase your value of your customers. बात वही है कि आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है बेटर देन योर कंपेटिटर्स. That is how that customer will be, he or she will remain loyal with your company. Otherwise, if he or she is getting a better option, why should they stick with you? Why should they use your product or service? So let's move to the topic which I was talking, that I am going to discuss with you. थोड़ा सा मैंने आपसे कहा था कि it is little bit on, इसकी थोड़ी सी उसकी एप्लीकेशन हाई लेवल की है, but still I've tried to make it very simple. आपने ये कुछ लफ्ज पढ़ेंगे तो ऐसे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आज इस पे थोड़ा सा टाइम लगाना चाहता हूं. We call it CRM, एब्रिविएशन यूज होती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. Nowadays, companies are investing a huge amount of resources for this CRM, customer relationship management. Let's see what is this. And as I promised, it will be very simple, and I hope you will understand it, right? So let's see CRM. क्या चीज है? CRM, of course, as I said, abbreviation of customer relationship management, is the overall process of building and maintaining profitable customer relationship by delivering superior customer value and satisfaction. How companies are doing this? As I said earlier, this is the era of IT, right? Information technology is all everywhere. Systems, people are building systems, softwares. They are keeping track of their customers. आगे कुछ टर्मिनोलॉजी में आपके साथ बज़वर्ड यूज करूंगा, डेटा माइनिंग, वेयर हाउसिंग, समथिंग लाइक दैट. क्या चीजें? तो वो कंपनीज अपने कस्टमर का ट्रैक रखती हैं, रिकॉर्ड रखती हैं कि उसकी ये लेट्स सी के पिछले 3 सालों में, 1 साल में, 2 सालों में बाइंग बिहेवियर क्या रहा, कौन सी चीज उसको पसंद है, कौन सा कलर उसको पसंद है, कौन सी चीज को ज्यादा यूज किया जाता है. इवन दे कीप ट्रैक ऑफ द जोन्स ऑफ द सिटी. अब उनके जो अपने स्टोर्स होते हैं वहां से डेटा भी लेते हैं और उस हिसाब से फिर वो मार्केटिंग अपनी ऑर्गेनाइज करते हैं. एंड दे रीच टू देयर कस्टमर, दे मेक श्योर कि दे आर रीचिंग देम इंडिविजुअली एंड दे आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. The new view of marketing is that marketing is the science and art both of what? Finding, retaining, and growing profitable customers. You have to find it first. उस पूरी पॉपुलेशन में से देखना है कि मेरे कस्टमर कौन से हो सकते, किसकी कोई कौन सी नीड है जो मैं दूसरों से बेहतर तरीके पे सेटिस्फाई कर सकता हूं, by producing product, by providing services or whatever. See the total concept of marketing slowly changing. It costs 5 to 10 times more to attract new customer than it does to keep the current customer satisfied. अभी तो मैं कह रहा था कि the important thing is holding the customer. Yes, of course, it is still there. But keeping in view the competitive pressure, the kind of environment in which we are working, especially the market, और जो खासकर ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब तो now you can see people from other country, they are also coming in, sitting there. तो किसी कस्टमर को दूसरों से निकाल के अपनी तरफ लाना is becoming more and more difficult now. तो आपका खर्चा नए कस्टमर को लाने में ज्यादा है बनिस्बत अगर अपने पुराने कस्टमर को रिटेन करें तो उसमें खर्चा भी कम होगा. ऑफ कोर्स व्हेन कॉस्ट इज लेस, आपकी अर्निंग भी ज्यादा होगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगा. सो एंड दैट इज द फिलॉसफी एंड बेस्ड ऑन विच दिस CRM was initiated, and now it is playing very important role in our marketing business.
मार्केटर मस्ट बी कंसर्न विद द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर. अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि हाउ वर्थफुल दैट पर्सन, दैट कस्टमर इज फॉर मी. एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग ब्लॉक्स को मद्देनजर रखते हुए आपको वो रिलेशनशिप बनानी है. एंड व्हाट आर दोस बेसिक इंग्रेडिएंट ब्लॉक्स? कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन. उसकी वर्थ क्या है और उसकी कितनी सेटिस्फैक्शन आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं. स्ट्रेटजीज क्या है? मार्केटिंग की स्ट्रेटजी, दे आर फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. कैसे? जितनी मैक्सिमम आप उस कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और टाइमली उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं फॉर योर डिसीजन मेकिंग, फॉर योर रिलेशनशिप डेवलपमेंट, फॉर रीचिंग टू द कस्टमर, फॉर इन्फॉर्मिंग. क्योंकि बेसिक वो जो मॉडल याद है ना कि प्रोड्यूसर एंड यू हैव द कंज्यूमर एंड देन प्रोड्यूसर ऑलवेज इनिशिएट द प्रोसेस बाय कम्युनिकेटिंग. एंड यू इफ यू हैव ऑलरेडी डेटाबेस विद यू, इफ यू हैव देयर एड्रेस, कल आपको अगर एक लेटर मिलता है जिसपे आपके नाम लेटर होता है और आपका शुक्रिया भी अदा किया जाता है और आपसे कहा जाता है कि ये फलां बुक जो आपकी फलां सब्जेक्ट के लिए फलां मार्केट दुकान पे अवेलेबल आपको इतने में मिल जाएगी, तो यू थिंक दैट यू विल फील लिटिल बिट एलिवेटेड और आप खुश भी होंगे, यार मुझे बजाय मुझे भागने दौड़ने के जो क्लाइंट, जो आपका प्रोड्यूसर है, जो आपका सेलर है, उसने आपसे खुद अप्रोच करके आपको बता दिया. वो कैसे बता सकता है? अनलेस ही हैज सम लिंक. उसके पास डेटाबेस जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का है उसको एक्सेस नहीं है. तो अगली जो मार्केटिंग हो रही है सारी इसी तरह हो रही है, इंटीग्रेटेड किस्म की. उस डेटाबेस को जितना भी किसी के पास अवेलेबल है सारे एक दूसरे को लिंक करते हैं एंड दे पे इवन टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स. व्हाट आर द गोल्स ऑफ दिस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? ऑफ कोर्स यू वांट टू इंक्रीज योर मार्केट शेयर, यू वांट टू कीप दैट लॉयल कस्टमर विद यू. The idea of CRM is that it helps business to use technology to gain insight into the behavior of the customer. जैसे मैंने आपसे कहा कि वो इंफॉर्मेशन गैदर करके कस्टमर्स के ट्रेंड्स को, कस्टमर के बिहेवियर को, कस्टमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग को देख सकते हैं और फिर उस बेस पे अपने कस्टमर्स को एक बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. आजकल ये कॉल सेंटर का कॉन्सेप्ट भी आया हुआ है. Like if you're using credit card, you can have the 800 number, you can just call them and figure out कि क्या आपका बैलेंस कितना है, पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है, and they are more than happy to help you. आपने देखा वो कितनी नाइसली, कितने हम्बली वो आपसे बात करते हैं और आपको क्विकली सारी इंफॉर्मेशन भी देते हैं. What is this? This is also a kind of developing the customer relationships. इसी तरह अपने जो आपका सेल फोर्स होती है उसको भी आपका ये डेटाबेस जो है, ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है, ये हेल्पफुल होती है कि वो क्विकली अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर के रीच के पास रहें और उसको टाइमली वो इंफॉर्मेशन, वो प्रोडक्ट, वो सर्विस भी पहुंचा सकें जो उसको जरूरत है. एंड ऑफ कोर्स इन दिस वे यू कैन ऑल्सो डिस्कवर न्यू कस्टमर्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉयल्टी? व्हाट इज लॉयल्टी? We're talking about the loyalty of the customer. With whom? With the company, with the organization, with that product or service they are using. And again, this is very important, as I said, because the benefit of retention is very high. एक कस्टमर आपसे नाराज होकर चला गया, company sometimes has to pay huge cost for that. Because एक ना सिर्फ उसने डायरेक्ट जो बिजनेस उसने आपको देना था वो तो लॉस हुआ ही हुआ, he might misguide 100 of other customers. सही है? So let's see what is this loyalty thing. Firms have realized the value of customer retention, the loyalty. Facts. जैसे मैंने अभी कहा, winning a new customer is usually 5 to 10 times more costly than retaining the existing customer. Customers are usually more profitable
the longer you keep them. Why? Because वही जो बात है कि टेंजेबल और इंटेंजेबल बेनिफिट्स को कंपनी को मिल रहे होते हैं. एक तो चले वो जो आपका प्रोडक्ट सर्विस यूज कर ही रहा है, दूसरा जो उसके साथ बहुत सारी चीजें आ रही हैं, दे आर वैल्यू एडिशन थिंग्स. As I said earlier, the value of the loyalty goes beyond single customers. How? The same thing. If the customer is happy, the loyal customer provide you the more and more credible reference. और लोग आएंगे उसकी वजह से. If you're happy with the virtual university, your family members you might recommend them, okay, go and get admission in virtual university. You will tell your friends कि यार बड़ा अच्छा सिस्टम है, बड़ा अच्छा पढ़ाई है, and learning is good. आपके देखा देखी, आपकी बात को सुनते हुए वो लोग भी इस तरफ आएंगे. Similarly, other organizations, other companies. But what about other way? If you're not happy, the angry person, the angry customer, वो तो कहानियां सुनाएगा ना, एक को 10 मिला के बताएगा, वहां पे ये भी मसला है, वहां पे ये भी प्रॉब्लम है, वहां पे ये भी इशू है. A disloyal customer can devastate a firm and organization. क्यों? हमारे एक प्रोफेसर होते थे जब when I did my marketing, Dr. Arvelis. In every class he used to say, never ever travel United Airlines. And we were asking Dr. Arvelis, what is the reason? He said, you know what, once I was traveling with them and I asked them to give me an extra packet of that peanut and they refused. I don't want to travel in that airline. इसका क्या नुकसान हुआ? In each class, we were having around 60 to 70 or something more than students. एक टीचर, एक उस्ताद, आप बार बार एक चीज आपके सामने कह रहा है, वो भी unconsciously. I stayed 5 years there instead. And I don't know why I never travel on the same airline. That thing was somewhere in my subconscious. क्या कीमत होगी एक छोटे से पीनट्स की, वो जो देते हैं, मूंगफली के दाने जो होते हैं, पीनट्स, salted. So, a unsatisfied, disloyal, angry customer is going to damage you more. So you should be very careful in marketing. क्योंकि वो, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो satisfied customer है वो तो 10 लोगों को बताएगा, of course, but angry is going to tell 100 people. So companies are very careful about these things, about retention, about satisfaction of their customers. Clear? So the bottom line is, अगर जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं उनमें से 5% टर्नओवर आप कम करा दें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो जो कस्टमर टर्नओवर मींस people are leaving you and going to your competitor and buying from there, are using their services. Let's see if it was 20%. आपने अच्छी एफर्ट की, आपने उनसे अच्छी रिलेशनशिप की, आपने 5% उसमें से कम कर दिया, आप 15% रह गया. वो जो 5% आपने कम किया टर्नओवर रेट, उसका फायदा आपकी कंपनी को क्या हो रहा है? 25 to 95% इमीडिएटली आपकी प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द environment. And it is clear that developing and retaining customer relationship is a key to competitive success and profitability in this era. I think enough for today, but still I have to tell you certain other things. जैसे मैंने आपसे कहा था कि डेटा वेयर हाउसेस का कंसेप्ट आपने सुनेंगे, कि लफ्ज पढ़ेंगे, यहाँ पे डेटा माइनिंग की बात करेंगे. ये सारे आजकल नई नई टेक्नोलॉजी जो आई है, इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं. लोग सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म का एक जगह पे, डेटा हाउसेस के अंदर, डेटा वेयर हाउसेस के अंदर, और वहां से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ कंपनीज अपनी मतलब की इंफॉर्मेशन पे करके ले रहे हैं. एंड देन दे आर यूजिंग दोज इंफॉर्मेशन फॉर
developing the relationship with their customers. Recently, I got a letter from an organization who is providing facilitation or support for the Hajj things. They are giving you the Hajj package. And from where they got my name? Because they have written me by name letter. Of course, from similar type of warehousing और कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई, जो घर होते हैं, घरों के एड्रेसेस वो लेके. तो people, this is how they develop more and more relationship with their customer. They call you कि जी आपने ये चीज ली थी, अब ये नई चीज आई है, उसमें ये इंपॉर्टेंट आपको चाहिए, आप रिप्लेस कर लें, आपको थोड़े से पैसे पे करके रिप्लेस करना पड़ेगा. And this is also becoming very important. The reason as I said, I brought this concept and discussed with you here today was because I have seen people, different authors, they are using this concept in beginning of their textbooks. So that you should not confuse these things. This is the same basic concept, the customer satisfaction. Of course, now the technology is changing, the things are changing. People are using the new technology to improve those relationships. उसी के लिए ये concept यहाँ पे हमने discuss किया. So should we quickly review what we have covered today? आज हमने मार्केटिंग फंक्शंस को देखा. 8 यूनिवर्सल जो फंक्शन जो करते हैं मार्केटिंग में. ऑफ कोर्स इसका यह मतलब नहीं कि बाकी नहीं, बाकी बहुत सारे फंक्शंस भी हैं. एंड देन मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी कुछ थी, डी मार्केटिंग थी और बाकी चीजें थी, वो हमने डिस्कस की. आई होप यू आर नाउ क्लियर अबाउट डी मार्केटिंग, राइट? आपको वाप्टा की मिसाल दी, आपको गैस वालों की मिसाल दी, सुई गैस की मिसाल दी, कि जब बेसिकली इट इज ए मैनेजिंग द मार्केटिंग प्रोसेस. इट इज if you have the supply is less and demand is more, nobody want कि their name should be bad in the market. फिर वो कोशिश करते हैं इस तरह की एक्टिविटी से कि वो अपने कस्टमर को मैनेज करें, उनको रियलाइज कराएं कि थोड़ा सा बैलेंस करना है इस वक्त, क्योंकि once customer is shifted to another thing, then it will be difficult to bring him back. और फिर हमने CRM का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और इसमें भी अगेन the both option देखें. The bottom line, if the loyal customer will be more credible because he will be bringing more intangible things other than using or buying directly from your company. But angry customer का से वो तो devastate होता है, वो तो बहुत नुकसानदेह होता है. और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को, वो जो इंफॉर्मेशन होती हैं कस्टमर के बारे में, उनको यूज करते हैं ताकि हम अपनी स्ट्रेटजीज बना सकें. इफ आई हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट माई प्रीवियस ईयर्स सेल्स, मेरे कस्टमर की ट्रेंड क्या था, क्या क्या चीजें उन्होंने पसंद की, तो फॉर द नेक्स्ट ईयर इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी टू मेक माई स्ट्रेटजीज. उनका बाइंग बिहेवियर देख के, उनके पैटर्न देख के, आई कैन develop my strategy according to the desire of my customer, my client, or then I will be successful. So what about next? What we are going to cover next? Next will be the evaluation of marketing concept. इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देखेंगे. Fine? So that was all about today's lecture. I hope we are doing fine. Right? So what is next? Yes, you have to go back and quickly go through those topics which we covered today. Read them from the textbook. And if you still are not feeling comfortable, इसको एक दफा और सुन लीजिए लेक्चर को, फिर पढ़ लीजिए. Try it again. But before, we should come back.